Good morning, class first. How are you all? I hope you all are fine at your home. So children, welcome back to your English class. And today we are going to start a new chapter, chapter number 6 from your English grammar book. So the name of your chapter is I, you, he, she, it, we and they. So the children, in this chapter we will study about these words. हम इन words के बारे में इस chapter में study करेंगे. So the children, when you speak English, you usually use these words. जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो हम इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं और आपने भी इन चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा, आपने भी देखा होगा कि जस्ट लाइक यू आस्क टू योर मदर, मम्मा आई वॉन्ट टू ड्रिंक मिल्क, यू आर प्रिटी, ही इज़ माई फ्रेंड, शी इज़ ब्यूटिफुल, इट इज़ माई पेट, वी आर गोइंग टू मार्केट, दे आर माई फ्रेंड्स. तो हमने इन वर्ड्स का यूज़ जब हम इंग्लिश बोलते हैं तब इन वर्ड्स का हम ज़रूर यूज़ करते हैं. सो व्हाट आर दीज वर्ड्स? ये वर्ड्स क्या हैं? सो द चिल्ड्रन, दीज वर्ड्स आर कॉल्ड प्रोनाउन. इन वर्ड्स को हम प्रोनाउन कहते हैं. एंड द प्रोनाउन वर्ड्स वी यूज़ इन द प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड्स, और जिनको हम नेमिंग वर्ड्स की जगह पर यूज़ करते हैं. इन आवर प्रीवियस क्लास वी स्टडीड अबाउट द नेमिंग वर्ड्स. हम अपनी पिछली हमारी जो क्लास थी उसमें हमने नेमिंग वर्ड्स के बारे में पढ़ा था. So what are the naming words? The words, the name of place, person, things or animal is called naming word. यानी किसी भी person, place, things, animal के name को हम क्या बोलते हैं? Naming words कहते हैं. यानी any name. In the short, we can say any name. कोई भी जो name होता है वो naming word होता है. तो इन words का use हम कब करते हैं? हम naming word की जगह पर इन words का use करते हैं. Now let's see. So I, you, he, she, it, we and they. So these are the pronoun. So some words are used in the place of naming words, nouns and are called pronoun. It means कि यानी कि कुछ वर्ड्स जो होते हैं नेमिंग वर्ड्स की जगह पर जिनको हम यूज़ करते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम प्रोनाउंस कहते हैं. जैसे कि आपके प्रोनाउंस क्या हैं यहाँ पर? I, you, he, she, it, we and they. These are the pronouns. Now here I, you, he, she and it are used for one person. So here first we will talk about the pronoun I, you, he, she, it. हम यहाँ पर पहले I, you, he, she, it pronouns के बारे में बात करेंगे. So I, you, he, she and it are used for one person. यानी I, he, she, you, it. These pronoun we use for the one person or thing. हम किसी भी one person या thing के लिए इन pronouns का यूज़ करते हैं. It means singular thing के लिए, only single person के लिए हम इन pronouns को यूज़ करते हैं. Just suppose I. So hi, I am Priya. You are my friend. He is Angad. She is Aarti. Okay, so here all these are single person. It means one here, this girl is introduced to herself and she is saying I am Priya. Now this boy is telling to this that you are Man. Okay, now this boy is telling about this boy and he is saying he is Angad. Now this girl is telling about for this girl and she is saying that she is आरती. तो यहाँ पर हम किसी एक पर्सन के बारे में ही बात कर रहे हैं. ओनली वन पर्सन के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं. तो जब हमने वन पर्सन के बारे में बात किया तो हमने कौन से प्रोनाउन यूज़ करे? हमने यूज़ करा I, you, he, she. एंड हियर ऑल्सो अबाउट द इट. नाउ इट इज़ अ कैट. सो it pronoun we use for the non-living things or animals और non-living things के लिए हम it pronoun का use करते हैं. non-living things just like a chair, table, book, है ना. the non-living things, those things that those cannot move, those cannot breathe, तो उनको हम क्या बोलते हैं? non-living things कहते हैं. तो non-living things के लिए और animals के लिए हम it pronoun का use करते हैं. now here we and they are used for more than one person. यानी we और they pronoun का use हम कब करते हैं? जब हम one से ज़्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हो, एक से ज़्यादा लोगों के. just like we. so we are girls. they are friends. So the children, we, it means
फॉर एग्जाम्पल वी यूज फॉर द आर ग्रुप, यानी जब आप अपने ग्रुप के बारे में बात करते हैं तब हम वी प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. वी इट मीन्स वी आर टॉकिंग देयर अबाउट मोर देन वन पर्सन. वहाँ पर हम एक से ज़्यादा जनों के बारे में बात कर रहे हैं. जस्ट सपोज वी का यूज़ हम कैसे करते हैं, जस्ट लाइक यू, योर मदर एंड योर फादर. अगर आप तीनों कहीं जा रहे हैं, इफ जस्ट सपोज दैट यू आर गोइंग टू मार्केट, अगर आप मार्केट जा रहे हैं तो बिकॉज 3 पर्सन्स आर गोइंग इन द मार्केट, यानी कि यू, योर फादर एंड योर मदर, आप, आपकी मम्मी और आपके पापा और मे बी योर ब्रदर और सिस्टर. तो जब आप सब लोग मिलकर कहीं जाते हैं एंड दिस इज़ द ग्रुप ऑफ योर्स, ये आपका ही ग्रुप है, यानी कि यहाँ पर जब सब लोग कौन है, जो आपकी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो दिस ग्रुप विल बी वी, यानी कि इस ग्रुप के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे, वी. तो बिकॉज देयर आर 4 पर्सन्स और मेनी पर्सन्स, मोर देन वन, यानी कि उस ग्रुप में कितने लोग हैं, एक से ज़्यादा लोग हैं. देन यू विल से वी आर गोइंग टू मार्केट. जब आप सिंगली जा रहे हो तब तो आप बोलोगे आई एम गोइंग टू मार्केट. बट when you are going in a group, just group of your family, just like you, your father, your mother or maybe your brother or sister, when you are going in a group then we use we. तब हम किसका यूज़ करेंगे, we. and we use for the our group, यानी अपने ग्रुप के लिए हम we का यूज़ करते हैं. तो we are going to market. like here they are friends, it means the person is telling about the other group. यहाँ पर जो boy है वो दूसरे ग्रुप के बारे में बात कर रहा है. because there are more than one, because यहाँ पर 2 boys हैं, यानी कि एक से ज़्यादा हैं. तो just like maybe your friend, just like a group of your friends, like there is maybe just name of Rahul, Riya, Rita. so when what you will say that they are my friend, आप क्या बोलोगे उनके लिए, they are my friend. यानी कि अगर आपके बहुत सारे फ्रेंड्स एक जगह पे खड़े हुए हैं या आप उनके बारे में किसी को बता रहे हैं, तब आप कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे, दे. तो इट मीन्स वी यूज़ फॉर द आर ग्रुप. जब हम अपने ग्रुप के बारे में बात करते हैं तब हम वी प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. जब हम किसी दूसरे के ग्रुप के बारे में बताते हैं वहाँ पर हम दे प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. अब नाउ फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ हाउ वी यूज़ these pronoun in the place of naming word, यानी कि नेमिंग वर्ड में हम किस तरीके से इन प्रोनाउन को यूज़ करते हैं. जस्ट सपोज दैट यू आर सेइंग दैट राहुल इज़ माई फ्रेंड. तो यहाँ पर आपने क्या यूज़ करा, राहुल इज़ माई फ्रेंड. देन यू टेल ही इज़ अ गुड बॉय. ठीक है, आपने 2 चीज़ करी. आपने फर्स्ट सेंटेंस में एक नेमिंग वर्ड यूज़ करा. नेमिंग वर्ड क्या था वहाँ पर, जस्ट लाइक राहुल इज़ माई फ्रेंड. यहाँ पे आपने कहा राहुल इज़ माई फ्रेंड. ठीक है, फुल स्टॉप, सेंटेंस इज ओवर हियर. नाउ यू सेड ही इज अ गुड बॉय. ठीक है, यानी दोनों ही बातें आपने 1 पर्सन के लिए कही हैं, एक ही जने के लिए आपने दोनों बातें कही हैं. लेकिन एक सेंटेंस बोलते हुए आपने राहुल इज़ माई फ्रेंड यूज़ करा, बट दूसरा सेंटेंस बोलते हुए आपने ही इज़ अ गुड बॉय. तो यहाँ पर ही हमने किसके लिए यूज़ करा, ही वर्ड जो है हमने राहुल के लिए यूज़ करा. तो यहाँ पर सेकंड सेंटेंस में जब हमने ही वर्ड यूज़ करा तो वो किसकी प्लेस पे आया, राहुल की प्लेस पे हमने क्या यूज़ करा, ही. तो राहुल इज़ अ नेमिंग वर्ड. नेमिंग वर्ड, राहुल क्या है, एक नेमिंग वर्ड है, एक नेम है किसी का, स्पेशल नेम है. एंड ही वी यूज़ फॉर द राहुल बिकॉज राहुल इज़ अ बॉय. हमने ही वर्ड जो है राहुल के लिए यूज़ करा क्योंकि राहुल क्या है, एक बॉय है. सो द चिल्ड्रन, लाइक दिस वी यूज़ द प्रोनाउन इन द प्लेस ऑफ नाउन, नेमिंग वर्ड. तो इस तरीके से हम नेमिंग वर्ड की जगह पर इन प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं. नाउ हेयर कीप इन माइंड, सो दीज टेबल यू हैव टू कीप इन योर माइंड. आपको ये टेबल जो यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है ना, इसको अपने माइंड में इसको याद करके रखना है, इसे लर्न करना है आपने. जस्ट सपोज 1 सिंगुलर, यानी कि यहाँ पर जितने भी हमने प्रोनाउन यूज़ करें इसको हम 1 या सिंगुलर पर्सन थिंग के लिए यूज़ करते हैं. हेयर मोर देन 1, यानी कि यहाँ पर मोर देन, एक से ज़्यादा के लिए यूज़ होने वाले प्रोनाउन है. जैसे कि आई का प्लूरल क्या होगा, आई फॉर द सिंगुलर, यानी हम अपने लिए बात करते हैं तब हम आई का यूज़ करते हैं ना, लेकिन जब हम अपने ग्रुप के लिए बात करते हैं तब हम वी का यूज़ करते हैं. यानी कि आई का जो प्लूरल है वो क्या हुआ, वी. यू हम दोनों में यूज़ करते हैं, यानी कि जब हम सिंगल पर्सन के लिए भी यू का यूज़ करते हैं और मोर देन 1 से ज़्यादा जब होते हैं तब भी हम यू का यूज़ करते हैं. ही इट मीन्स
वी यूज़ फॉर द सेकेंड पर्सन, ही हमेशा हम सेकेंड पर्सन के लिए यानी दूसरे व्यक्ति के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से दे भी हम दूसरे ग्रुप के लिए यूज़ करते हैं। तो लाइक दिस, ही इज़ अ सिंगुलर नाउन एंड दे इज़ अ प्लूरल नाउन, यानी कि दे जब हम दूसरे ग्रुप के लिए यूज़ करते हैं और ही हम दूसरे पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, सेकेंड पर्सन के लिए यूज़ करते हैं। लाइक हियर सी, शी वी यूज़ फॉर द गर्ल्स, दिस प्रोनाउन वी यूज़ फॉर द गर्ल्स के लिए हम यूज़ करते हैं शी। तो इस तरीके से शी और दे भी जो होता है, दे यानी कि इट डजेंट मैटर कि वो बॉयज़ का ग्रुप है या गर्ल्स का ग्रुप है, बट इट इज़ अदर ग्रुप, ठीक है ना। तो इसी तरीके से शी वी यूज़ फॉर द सेकेंड पर्सन, यानी कि हम हमेशा जब हम दूसरी किसी और लड़की के बारे में बात करते हैं वहाँ पर हम शी का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से ग्रुप ऑफ गर्ल्स के लिए भी हम दे का ही यूज़ करते हैं। इट, द प्लूरल इज दे। Okay, so you have to this table in your mind, keep in your mind. Okay, now here exercise time. So here you have to do this exercise in your book. आपको ये काम अपनी बुक में करना है। Now in the first underline the correct word in the given sentence. यहाँ पर आपको जो underline करना है, जो according to the sentence जो सही है उस पर आप underline करेंगे। Just like this is Rahul, he or she is a boy. तो यहाँ पर क्या होगा सही, because here we are talking about a Rahul and Rahul is a boy, so we will use he pronoun for this. So in the second sentence we use he is a boy. Surbhi has a Barbie doll. So here we are not talking about the Surbhi, here we are talking about the Barbie doll. यहाँ पर हम Barbie doll के बारे में बात कर रहे हैं। So it or he is new. So because doll is a non-living thing, so here we use it pronoun. So it is new. Ram has a new pen. It, he is blue in color, so pen is also non-living thing, so here we use it pronoun for that. There is a peacock in the garden and it looks beautiful, because peacock is the name of a bird, it is an animal category, so here we use it pronoun. Okay, now Garima is my friend, she plays with my friend. So Garima, because Garima is the name of a girl, and here we use she pronoun in the place of Garima. Now in the second B, rewrite the sentence replacing the underlined word with he, she, they, I और it. तो यहाँ पर आपको इन pronouns के साथ underlined words को, यानी कि जो black ज़्यादा bold कलर में जो words हैं उनको change करेंगे. So just like I have a cat, the cat likes to drink milk. So when you will change I have a cat, because cat is an animal, so here we use it pronoun for that, for the cat. cat के लिए हम यहाँ it pronoun का use करेंगे. I have a cat, it likes to drink milk. Ria can see a duck. The duck is near the pond. So in the second sentence we are talking about the duck. तो duck के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, तो duck के लिए हम क्या pronoun use करेंगे, it. So Ria can see a duck, it is near the pond. Now the third is Ravi is a friend of Sonu. Ravi likes to play with Sonu. So Ravi is a boy. So in the second sentence Ravi is a friend of Sonu. He likes to play with him. So here for the Sonu we use the him pronoun. यहाँ पर हम सोनू के लिए him pronoun का use करेंगे. Now the fourth, Tina and Meena are playing. So Tina and Meena are playing. Tina and Meena are friends. So here the group of other girls. यहाँ पर दो लड़कियों के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ दो दूसरी लड़कियों के बारे में हम बात कर रहे हैं. So Tina and Meena are playing. So more than one, Tina and Meena, it means two girls. So here we use they are friends. So Tina and Meena are playing, they are friends. Now here I am Ria. Ria likes to eat an ice cream. So Ria is the name of a girl. So I am Ria, and Ria, for the Ria we use, because here Ria is talking about the ourself. यहाँ पर Ria जो है अपने लिए ही बात कर रही है कि वो अपना इंट्रोडक्शन दे रही है. So I am Ria and I like to an ice cream. I like to eat an ice cream. So the children, you will do this work in your English grammar book, and here is the homework for you. And what is the homework for you? This is a fun zone. Color the birds which are carrying pronoun. यानी कि आपको उन words के उन pronoun उन words पे आपको क्या करना है, color करना है जो कि birds क्या कर रही है, carrying pronoun, यानी कि जिन्होंने pronoun को carry किया हुआ है. Just like here you have to
I is a pronoun, so you have to color here. आपको यहाँ color करना है. Pen is a naming word, so you don't have to color here. They is a pronoun, so you have to color here. And book is a noun, naming word, so you don't have to color here. She is a pronoun, so you will color here. And we is a pronoun, so you will color here. So the children, you have to do this work in your English grammar book. And that's all for today, and the other work we will do in our next class. Till then, bye, take care, stay home, stay safe.